Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'll discuss about evolution of drama. प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था ड्रामा को इन ब्रीफ में, लेकिन इस वीडियो में मैं ड्रामा को डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं विद वेस्टर्न ड्रामा। वेस्टर्न ड्रामा का ओरिजिन होता है एंशियंट ग्रीस में, स्पेसिफिकली इन एथेंस में। तो उस वक्त 3 जॉनरास थे जो एमर्ज हुए थे: ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड सैटर प्ले। ट्रेजेडी कॉमेडी तो नेम से ही पता लग रहा है, ट्रेजेडी में थोड़े सैड एलिमेंट्स एंड कॉमेडी में थोड़े फनी एलिमेंट्स। जो सैटर प्ले होता है वो कंबाइन होता है दोनों का, इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। इसमें क्या होता है, सैटरिस्ट का एक ग्रुप होता है जो मैथोलॉजिकल क्रिएचर है और अपने ही मस्ती में, नशे में और एक ल्यूड बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। ऐसे जो प्लेस होते हैं ये मिथ से बनते हैं, बट उन्हें एक कॉमेडी और पाउडी ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। की एग्जाम्पल्स ऑफ सैटर प्ले जैसे साइक्लॉप्स बाय यूरिपिडीज एंड एक्न्यूटे द ट्रैकर्स बाय सोफिक्लेस। ये प्लेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज दे आर अमंग द फ्यू सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ड्रामेटिक जॉनरा which combine elements of tragedy and comedy with a chorus of satyrs. जो ये genres थे, they were institutionalized in competitions during festivals honoring Dionysus. Dionysus was the god of wine and fertility by the 5th century BC. जो इस era के key figure थे वो थे Thespis, innovated by introducing an actor who speaks instead of sings, who impersonates a character who act like someone else and who interacts with the chorus. और कुछ ही वर्क्स हैं जो एशियन ग्रीक ड्रामेटिस्ट के हमारे को आज तक देखने को मिलते हैं। वी हैव कंप्लीट टेक्स्ट फ्रॉम ट्रेजेडियंस में है इस्किलस, सोफिक्लीस एंड यूरिपिडीज। कॉमेडियंस में है अरिस्टोफेन्स एंड मिनेंडो। की फैक्ट्स: Aeschylus the Persians is the oldest surviving drama. ट्रेजिक कंपटीशन शुरू होता है अराउंड 534 BC. जो ड्रामेटिस्ट थे दे प्रेजेंटेड अ टेट्रालॉजी विच मीन्स इसमें 3 ट्रेजेडीज होएगी एंड 1 सैटर प्ले होगा. एंड कॉमेडी वॉज ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड इन competitions अराउंड 487 and 486 BC. In ancient Greece, comic dramatists competed at the city's Dionysia festival. There were 5 comedians competing, each presented 1 comedy. Ancient Greek comedy को हम 3 periods में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला ओल्ड कॉमेडी जो फ्लरिश हुआ था अराउंड 5th century BC, then मिडल कॉमेडी 4th century BC, न्यू कॉमेडी लेट 4th century to 2nd century BC. Old comedy. Old comedy is the earliest phase of ancient Greek comedy. Here what you need to know, सबसे पहला तो important playwright. Aristophanes is the most famous old comic playwright. उनके जो works थे ना उसमें थोड़ा मतलब हमारे को देखने को मिलता है एक तो political commentary, थोड़ा सा humor with sexual undertones. दूसरा जो उनका genre है वो पूरी old comedy को define करता है और उनके वर्क्स कुछ ही हमारे को देखने को मिलते हैं. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ओल्ड कॉमेडी प्लेज एंड प्लेराइट्स वर्क्स हैव बीन लॉस्ट ओवर टाइम. ओनली अरिस्टोफेन्स plays have survived intact, while others exist only in fragments or through mention by other authors. Then comes Middle Comedy. Middle Comedy was a style of drama in ancient Athens, lasting from around 400 BC to 320 BC. Middle Comedy basically आपके social themes पे focus करता था. It explored everyday life and social issues, marking a shift from old comedy's focus on politics and philosophy. Middle Comedy को आप एक transitional period भी बोल सकते हो, as it is a transition to new comedy. मतलब old comedy से हम new comedy की side मतलब shift कर रहे हैं. This period bridged the gap between old comedy's harsh criticism and new comedy's gentle satire of domestic life. कुछ important playwrights
जैसे एंटीफेन्स एंड एलेक्सिस were prominent middle comedy writers, but most of their works have been lost over time. Aristophanes' last play, The Plutus, and Aristophanes' final play showcases this transition to middle comedy. उसके बाद आता है न्यू कॉमेडी. New comedy was a style of Greek drama that flourished from around 320 BC to the mid-3rd century BC. न्यू कॉमेडी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे हमारे को थोड़ा सा सटायर देखने को मिलता है. न्यू कॉमेडी gently pokes fun at everyday Athenian life, focusing on family and relationships. जो न्यू कॉमेडी में कैरेक्टर्स होते थे वो ऑर्डिनरी होते थे, ऐसे नहीं कि हीरोज़ हो गए या फिर कोई पब्लिक फिगर्स होंगे. दे वर फिक्शनल एवरेज सिटीजन्स. लव एंड रिलेशनशिप्स, तो ये उसकी थीम, ये मतलब मैक्सिमम यही थीम होती थी, लव एंड रिलेशनशिप. कॉमन थीम्स इंक्लूड थ्वाटेड लवर्स विद स्टॉक कैरेक्टर्स लाइक क्लेवर स्लेव्स, sly merchants, and strict fathers. Discovery and resolution. The plots often involve a foundling whose true identity is revealed, allowing for a happy ending. Reflection of society. New comedy captures the mood of the Athenian middle class, conveying disillusionment and moral complexity. कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेराइट्स हैं न्यू कॉमेडी के, जैसे मिनेंडर. ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ न्यू कॉमेडी, नोन फॉर हिज प्लेस लाइक डिस्कोलस, द ग्राउच. उसके बाद आता है फिलेमन. ये प्रोमिनेंट प्लेराइट है न्यू कॉमेडी के, नोन फॉर हिज विटी डायलॉग एंड कैरेक्टराइजेशन. उसके बाद आएंगे टेफिलस. ही वॉज contemporary of Menander, whose work influenced Roman comedy. So this is all about Western drama, old comedy, middle comedy and new comedy. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में I'll discuss about Roman drama. So if you like today's video, like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.